मैं हूं आपके साथ मीना। कोरबा में न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए दुकान से बेदखली के एक मामले में दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाते हुए धमकी चमकी और डराने धमकाने के मामले में बांकी मोगरा थाना के टीआई और वर्तमान सिविल लाइन थाना टीआई प्रमोद डडसेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि पहले एफआईआर दर्ज करें, फिर बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन करने में हीला हवाला ना किया जाए। इस मामले में वो पुलिस वाला है, इसलिए एफआईआर नहीं की जा रही होगी, इसलिए पहले एफआईआर दर्ज करें। नहीं है क्या? आई नहीं है, अभी आई नहीं है, तो इसको देखते हैं, वो वाला आएगा, देखा जाएगा जो ऑर्डर होगा। ये क्या है? The dispute pertains to the landlord and tenant. अच्छा, The decree was granted by the trial court upheld by the Honorable High Court. The decree was granted thereafter, my lord. In pursuance of the decree, the possession was handed over to the landlord. आप लैंडलॉर्ड हैं? No, I am the third party, my lord. The allegations are, my lord, that on the date when the possession was handed over, it was a shop in question. The article, because he was running the electronic shop and mobile shop, the judgment dater, the articles were lying in the shop. The possession was given, but vacant possession could not be given to the landlord. Subsequently, there was a dispute arose, my lord. ये लैंडलॉर्ड है ईश्वर? He is for the tenant, my lord. टेनेंट है। He is for the tenant. अब when the dispute arose, एफआईआर लैंडलॉर्ड ने किया है। FIR, the application was made by the landlord under section Landlord, 150. वो- उसका ये कहना था सर लैंडलॉर्ड का कि when the landlord started, my lord, bringing the articles from the shop in question, there was a dispute arose between the family of the landlord and tenant. Both have approached the police station. आप कौन है? I am the person who was the in charge of the police station. इंचार्ज हो? In charge of the police station, अच्छा, my lord. The allegations are, my lord, आपने मदद किया होगा मदद सामान की। हटवाने में। and the रोजनामचा साना नोटिस कर दे भाई, स्टे कर। चल, 156(3) का ऑर्डर है 156 कि अलाउ चार्जशीट किया है, अलाउ किया है। तो एफआईआर हुआ नहीं है? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो एफआईआर तो हो जाने दो। 156 का ऑर्डर है, but because कब का ऑर्डर है? 156(3) this fresh order, my lord, it was passed on 3/1/2025. तो आप पुलिस वाले एफआईआर होने नहीं देंगे? No, it was the पहले order एफआईआर अपने खिलाफ to दिखा के the तब आई। SP, my lord. It has been to the SP. It has तो been क्यों direct. नहीं? आज हम लोग हैं 17 So तारीख I में। am the only problem is, my lord, since I am a government employee. तो सर हुआ है आप गवर्नमेंट नहीं, ऑफिसर, the उससे क्या only मतलब? difficulties, my lord, if the FIR would have been, my lord may say that FIR may go on. I am not claiming that the FIR should not have been. Let the FIR be registered, then it will go on. Without registering the applicant, who is the police personnel, has challenged the order, impugned order passed by the magistrate, by which the Because the directions have been issued to the SP. application was allowed, and the learned magistrate by the impugned order is directed for registration of the case against, है ना? But on a pointed query being made from the state council whether any FIR has been registered or not, it is stated क्या है? 14 तारीख तक का 4/2/2025 तक का समय दिया है सर। हैं? 4/2/2025 तक का अंतिम प्रतिवेदन 4/2/2025। The time has been granted, पेज नंबर 20। क्या काहे का टाइम दे दिया उन्होंने? मैंने रिपोर्ट इधर एफआईआर दर्ज होने के बाद निरीक्षक डडसेना अवकाश पर चले गए हैं। अभी तक उन्हें लाइन अटैच करने संबंधी आदेश भी जारी नहीं किया जा सका है। विधिक जानकारों के मुताबिक गैर जमानती धारा में उनकी गिरफ्तारी भी होनी है। इस मामले में निचली अदालत ने 3 जनवरी 2025 को कोरबा पुलिस अधीक्षक को आदेश किया था कि अपराध दर्ज कर अन्वेषण उपरांत प्राप्त आधारों पर अपना अंतिम प्रतिवेदन 4 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत करें, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, जिस पर हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचाराधीन इस परिवाद प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा रूपल अग्रवाल ने फरियादी की ओर से परिवाद पत्र 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत मामले में विचारण पश्चात ये आदेश दिया था। तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किराएदार के प्रभाव में आकर उसके साथ मिलकर न्यायालयीन आदेश की अवमानना करते हुए मकान मालिक रामलाल चौहान के दुकान में अवैध प्रवेश कर धमकाते हुए उसका भयादोहन करने और उसे थाने में अवैध तरीके से ले जाकर 2 घंटे तक बैठाकर रखने पर धारा 166, 451, 384, 506, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने
जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया था। साथ ही हेतराम साहू के खिलाफ भी धारा 451, 384, 34 भारतीय दंड विधान का जुर्म दर्ज करने आदेशित किया गया था। इन दोनों पर अब जाकर जुर्म दर्ज किया गया है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।